Hello, dear students. How are you all doing? I know you all are doing fine. Good. So, I welcome you to today's class. Got it? As you all know, in the last class, it was a surprise. We have started a new chapter in history. Chapter 6, Towns, Traders and Craftsperson. I told you in the last class also that children, this chapter is very interesting. आपको बहुत मजा आएगा. You will enjoy the chapter. And the another important thing that you need to understand is that knowing about something new is always good. कोई भी नई चीज़ हमेशा पता करना चाहिए, नई चीज़ की हमेशा जानकारी होनी चाहिए. That is what we are starting here. I have given you a brief introduction about this chapter. ये chapter हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है ना. We have done it in the last class. We also discussed about this map work. Map work में हमने क्या किया था? It is very clearly mentioned here. Trade centers. Trade centers में जो इंडिया में जो जो जगह बहुत फेमस थी, उन जगहों के बारे में हमने डिस्कस किया. Just see the marking is already done here. हमने 3 मेन जगहों के बारे में बात की थी. We talked about 3 main places: Surat, Hampi and Masulipatam. Got it? After discussing about these 3 places, okay, and understanding the kind of trade that was happening here, the kind of mechanism that was happening here, it was bringing lot of changes in the Indian business. Indian business was very flourishing. Flourishing means कि because of the business that was being done at these places, यहाँ पे जो business होता था, इसके वजह से ही इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. I hope you all know that. Yes, India very well was known as सोने की चिड़िया. तो ये because of the trade activities that was happening at these places, इसके लिए इंडिया को सोने की चिड़िया. And one of the very successful modes of trade was happening here: Surat, Hampi and Masulipatam. One important feature about these places is that all these places were adjoining the seashore. Okay, समुद्र से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है. That's why it was called as the trading centers. उस समय I told you ना, there was no waterway, there was no airways at that time. So everything that was happening through waterways के through ये जो trade हो रहा था, because of that these places have become very important from the trade point of view. So these were the trade centers and these were also the artisanal centers. Artist, बहुत नए नए तरीके की कारीगरी होती थी. Many new types of things were being done here. Got it? So these artistic things that were happening, it had brought lot of changes in the lives of the people. Very rich people were staying here. And let me make one thing very clear: Hampi and Masulipatam, these were the places, these were the centers which were very famous. Hampi to was very famous from religious point of view also. A lot of temples are there at Hampi. Yes, it is in Karnataka. कभी मौका मिले तो जाना. One of the most beautiful places ever we have seen. Okay, that is there. So we are starting with this next topic. I just revised the previous topic. Administrative centers. हमने क्या डिस्कस किया? How many types of towns were there? There were the temple towns. Temple towns means ऐसे towns जहाँ खाली temple ही temple थे. लोगों का business was dependent on these temples. कैसे? फूल की दुकान खोली हुई है, प्रसाद की दुकान खोली है, मंदिर के डेकोरेशन का सामान मिल रहा है, ऐसी दुकानें हैं. ठीक है? Ever if you get a chance to visit Mathura or Vrindavan, the whole city is concentrated in and around the activities of the temple of Lord Krishna. Lord Krishna's big temple is there.
उसी के आसपास सारी एक्टिविटीज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड थी. ओके, सो you read about let's read about these administrative centers. एक तो हमने already administrative centers के हिसाब से we have talked in the second chapter. Remember the second chapter? Yes. So much we discussed about the Chola dynasty, didn't we? So Chola dynasty के बारे में we discussed in chapter 2. And अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पे स्ट्रेस करो. थिंक ओवर दैट यू आर इन द मिडिवल टाइम्स. आप 15th सेंचुरी में हो, यू आर नॉट इन द 21st सेंचुरी. ओके, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर इन अ मिडिवल टाउन एंड द टाउन्स नेम इज थंजावुर. साउथ का एक टाउन है थंजावुर, वहां पे आप घूम रहे हो. एंड थंजावुर क्या था? थंजावुर इज द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम. ठीक है, चोलाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनास्टी. जैसे मुगल डायनास्टी को हम जानते हैं इन द नॉर्थ इंडिया, इन द सेम वे साउथ इंडिया में चोला डायनास्टी वॉज वेरी फेमस. आई मीन ऑल द थिंग्स, चाहे बैटल हो, चाहे बिजनेस हो, वेदर इट्स अ बैटल, वेदर इट्स अ बिजनेस, इन ऑल द फील्ड्स चोलाज वेर डूइंग वेरी वेल. चोलाज बहुत अच्छा काम कर रहे थे. गॉट इट? तो you are in Thanjavur, the capital of the Cholas, and 1000 years ago, I am so sorry, मैं 500 years कह रही थी, लेकिन नहीं, we are going back to a time that was 1000 years ago. Okay, so you are in the 10th century. अब आप वहाँ पे क्या देख रहे हो? सबसे पहले तो perennial river flows near this beautiful town. Okay. No, I will not give you the meaning of perennial. You have to find out the meaning of perennial. Got it? Kaveri river flows near this beautiful town and this is a perennial river. Perennial का मतलब आपको मेरे को बताना है in the online session. Got it? Yes. Please. Of course, I told you ना, डिक्शनरी में you will find out the meaning of perennial. तो उसमें P में आप you will be finding other words also. एक वर्ड को खोजने के चक्कर में आपको 3 वर्ड्स के बारे में पता चलेगा. सो फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ पेरेनियल. इसके बाद उसी कावेरी नदी के बगल में, नियर दैट कावेरी रिवर, देयर इज द टेम्पल ऑफ राज राजेश्वर टेम्पल. राज राजेश्वर टेम्पल याद है? लास्ट चैप्टर में वी हैव रेड. यस, टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर 5 में है ना, बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स. उसमें वी हैव रेड अबाउट राज राजेश्वर टेम्पल. नदी बह रही है, बगल में देयर इज अ टेम्पल, राज राजेश्वर टेम्पल. हु हैज मेड इट? राज राज चोला हैज मेड इट. एंड ऑल द टाउन पीपल, शहर के जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट. और इस राज राजेश्वर टेम्पल को बनाया किसने है? कुंजर मल्लन राज राजा पेरुंथ चंचन. बेटा ये साउथ के नाम है, इस तो ऐसे ही रहेंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन. कुंजर मल्लन राज राज पेरुंथ चंचन. गॉट इट? हाँ, यू हैव टू रिमेंबर इट वंस अगेन. कुंजर मल्लन राज राज पेरुथ चंचन. ओके, यस. होता है कहीं कहीं पे दिस काइंड ऑफ नेम्स आर ओनली देयर ना. चाइनीज में क्या चिंग चैंग हुंग हांग इस तरह के नेम्स होते हैं. But in our society we have, south में you will find these kind of names. So what happens, जिसने ये टेम्पल बनाया था उसका नाम था कुंजर मल्लन राज राजा पेरुथ चंचन. तो ये इन्होंने अपना कैसे पता चलता है? हाउ डू वी कम टू नो अबाउट हिज नेम? द टेम्पल दैट इज मेड, जो मंदिर बना है उसमें he has carved his name. अपना नाम, अपना सिग्नेचर जैसे हम करते हैं ना, द वे वी डू द सिग्नेचर्स, इन द सेम वे ही हैज कार्व्ड हिज नेम ऑन द स्टोन. वहाँ के पत्थरों में क्या किया उन्होंने? अपना नाम जो है वो लिख दिया है. हाँ, ही हैज एनग्रेव्ड हिज नेम देयर. एंड टेम्पल वॉल इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंगा. जो मंदिर की जो दीवार है उसके ऊपर उन्होंने अपना नाम लिख दिया. He has written his name there.
ओके, कुंजर मल्लन राज राज पेरुंथ चंचन। ओके, तो अंदर में क्या है, देर इज अ बिग शिवलिंगा, बड़ा सा शंकर भगवान का एक लिंगा रखा हुआ है। टेम्पल के बगल में देयर आर पैलेसेस, जैसे द प्लेस वेयर किंग लिव्स ना, जहाँ पे राजा रहते हैं, दोज पैलेसेस आर देयर। राजा का महल है, उस महल में देयर इज पेविलियन, देयर इज मंडप, ऑल दीज मीनिंग्स आर देयर। मंडप तो वही है जैसे शादी का मंडप होता है। ऑन द फोर साइड्स देयर आर पिलर्स, बीच में बिल्कुल जगह होती है, देयर यू कैन सिट एंड देयर वर्शिप, ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स कैन बी ऑफर्ड, हवन होता है एंड शादी होती है एंड ऑल काइंड्स, दैट इज मंडप। पेविलियन जो वरांडा होता है जिसमें वॉक कर सकते हैं, देयर आर पैलेसेस विथ मंडप्स और पेविलियंस। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स, ये जो मंडप होते हैं, दीज मंडप्स, द किंग्स का, राजाओं का दरबार लगता है इन दीज मंडपास। बिग मंडप, छोटा मोटा नहीं होता है शादी वाला। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, शादी का मंडप भी कहते हैं, सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। दीज मंडप्स वेयर ह्यूज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल होते हैं विथ लॉफ्टी पिलर्स, बहुत बड़े से खंबे होते हैं, मतलब वहाँ पे द किंग इज सिटिंग। तो जहाँ राजा बैठ रहे हैं वहाँ की तो जगह की ब्यूटी ही अलग होनी चाहिए, isn't it? That is how it was made. राजा जो है, he holds its court in these mandaps. He issues orders to their subordinates, उनके साथ जो काम कर रहे हैं राजा के साथ, he is giving orders to them. And there are also barracks for the army. Barracks are those places where army takes rest. अभी जैसे यू हैव सीन नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नियर हिम ऑल द टाइम यू विल फाइंड द सिक्योरिटी गार्ड्स। यू हैव सीन ऑल दिस विथ ब्लैक चश्मा, काला चश्मा लगा के। तो द प्लेस वेयर इज नरेंद्र मोदीज हाउस, उसके ठीक बगल में देयर इज अ बिग बिल्डिंग, यस, वेयर दीज सिक्योरिटी गार्ड्स आर लिविंग ऑल द टाइम 24 आवर्स। नो, देयर ड्यूटी चेंजेस, एक ही आदमी थोड़ी 24 आवर्स करेगा। देयर इज सेट 20 पीपल एक टाइम, मतलब 60-70 लोग वहां पे रह रहे हैं, एंड ऑल द अरेंजमेंट्स आर देयर, दे आर प्राइम मिनिस्टर्स गार्ड, तो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। They also have to take rest, they also have to bath, eat and all these things. So proper arrangements is made for these security guards. So there are barracks for the army. Army was always there to protect the king and his family. तो ये जो आर्मी है जो 24 घंटा किंग को और उनकी फैमिली को जो प्रोटेक्ट करते हैं, where do they live? वो कहाँ रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करता है? सो द प्लेस वेयर दिस आर्मी इज स्टेइंग एंड वेयर ऑल द अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द आर्मी, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज बैरक्स। आर्मी में भी शिफ्ट में ड्यूटी होती है ना, one person comes and he will be awake till 8 hours. उसके बाद there is other person's duty, he will come. I told you ना 24 hours एक आदमी ड्यूटी नहीं कर सकता, got it? तो टेम्पल के बगल में किंग का पैलेस है, पैलेस में देर इज मंडप, देर इज पेविलियन, एंड किंग का, राजा का दरबार लगता है। किंग होल्ड्स द कोर्ट इन दीज मंडप्स एंड ही इज इशूइंग ऑर्डर टू हिज सबऑर्डिनेट्स, एंड बैरक्स इज ऑल्सो देयर फॉर द आर्मी। अब ये जो थंजावुर टाउन है, प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द टाउन। ये जो थंजावुर शहर है, टाउन इज बसलिंग विथ मार्केट्स, ठीक है, ये पूरे शहर में ना बहुत सारे मार्केट्स है, बिग मार्केट्स आर देयर। और उन मार्केट्स में क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेट इन दिस मार्केट्स? ग्रेन, स्पाइस, क्लोथ, ज्वेलरी, all these things are available in the market, got it? Anybody who is visiting the Thanjavur market, he will be getting whatever he needs. जो भी उसको सामान चाहिए वो सारा उस मार्केट में अवेलेबल है, ओके? Grains, spices, cloth, jewelry, everything is there in the market. Water कहाँ से आता है? From where does the water come from?
देयर आर वेल्स एंड देयर आर टैंक्स. कुएं बने हुए हैं और स्मॉल टैंक्स आर देयर. हौदा भी बना हुआ है. ओके, तो ऑल द अरेंजमेंट्स आर प्रॉपर. 1000 साल पहले की बात हो रही है. प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाउन दैट एग्जिस्टेड 1000 years बैक. जस्ट सी हाउ मच पीपल आर मेड कंफर्टेबल. लोगों को एकदम कंफर्ट लाइफ दिया गया है. देयर लाइफ इज नॉट फिल्ड विथ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. दे ऑल आर वेरी कंफर्टेबल. अभी क्या है, थंजावुर में देयर आर सालिया वीवर्स. मतलब जो बुनकर होते हैं, द पीपल हु आर वीविंग. एंड एक तो वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड नियर बाय टाउन, बगल में ही एक शहर है विच इज उरायूर. उरायूर वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 2. चैप्टर 2 में उरायूर का जिक्र था. ओके, नाउ व्हाट आर दे डूइंग. यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? पीपल हु आर स्टेइंग, द सालिया वीवर्स थंजावुर के एंड उरायूर के जो लोग हैं, दे आर मेकिंग क्लोथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल. टेम्पल में वेन एवर देयर इज फेस्टिवल, जब कोई भी ओकेजन होता है, गॉट इट, लॉट ऑफ सेरेमनीज आर देयर ना. बिग टेम्पल्स आर देयर, बिग टेम्पल्स में बिग एक्टिविटीज आर हैपनिंग. तो फॉर दीज एक्टिविटीज और फॉर दीज सेरेमनीज, बहुत सारी जब सेरेमनी होती है तो नहीं, फ्लैग्स खूब सारे कलरफुल लगाए जाते हैं. इन द सेम वे टेम्पल में देयर इज सेरेमनी तो फ्लैग्स आर यूज्ड. गॉट इट. तो टेम्पल फेस्टिवल के लिए फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड जो किंग है और उनके साथ के जो लोग हैं उनके लिए मसलिन क्लॉथ इज यूज्ड. बिल्कुल पतला वाला. गर्मी बहुत होती थी ना साउथ में, तो वेरी फाइन क्लॉथ, एकदम महीन वाला जो कपड़ा होता है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द पीपल इन थंजावुर एंड उरायूर. हाँ, वो दे आर मेकिंग फ्लैग्स ऑल्सो, दे आर मेकिंग क्लोथ्स ऑल्सो एंड कोर्स क्लोथ. फाइन क्लोथ मतलब पतला कपड़ा जो है, इट इज फॉर द किंग and the nobility. Nobility means the people who are working with the king. And coarse cloth, खूब मोटा thick कपड़ा जो है, coarse cotton for the masses. बहुत सारे लोग हैं, the mass that is there, the group of people who are there, उनके लिए मोटा वाला कपड़ा, coarse cotton. तो all these activities are there. I told you ना, we will be talking about common people. कॉमन पीपल वहां पे क्या काम कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. दिस इज द वर्क दैट दे आर डूइंग. एंड सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूर में क्या है, देयर इज द स्वामी मलाई. ठीक है, सेनापतिज. ठीक है, एक जगह है दैट्स नेम इज स्वामी मलाई. वहां पे सेनापति और स्कल्प्टर्स आर मेकिंग एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंट बेल मेटल लैम्प्स. प्लीज समझो हम क्या बातें कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. उस समय के लोग क्या काम कर रहे थे. कुछ लोग कपड़े बना रहे हैं. स्वामी मलाई में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्थापतीज आर देयर. ठीक है, जो मूर्तियां बनाते हैं, स्कल्प्टर्स, द पीपल हु आर मेकिंग मूर्ति, दे आर कॉल्ड एज स्थपतीज. क्या कहते थे, स्थपतीज. ठीक है, एंड दे आर मेकिंग ब्रॉन्ज आइडल्स. ब्रॉन्ज तांबे का जो होता है, तांबे की मूर्तियां बना रहे हैं. एंड टॉल ऑर्नामेंट बेल मेटल लैम्प्स, बड़े बड़े लैम्प्स बना रहे हैं, क्योंकि उस समय देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. सो बिग लैम्प्स वेर देयर, जो कि चौराहे पे लगाया जाता था, उसमें बहुत सारा ऑयल डाल के, सो दैट द पीपल हु आर मूविंग एट नाइट मस्ट नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स. सो यू कैन सी the occupation of the people who are living in these towns. Right now we discussed about Thanjavur. थंजावुर और उसके आसपास के टाउन्स में लोग क्या काम कर रहे थे, दैट इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड, इजंट इट? एंड वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ऑर्नामेंट बेल मेटल लैम्प्स, ऑर्नामेंटल, बहुत सजा हुआ, ब्यूटिफुल,
बेल के शेप में, घंटी के शेप में लैंप. ओके, मेटल लैंप्स आर बीइंग मेड. सो यू कैन अंडरस्टैंड इस जगह के लोग कितने आर्टिस्टिक थे, हाउ मच, कितने कारीगर रहे होंगे. जस्ट सी वन क्वेश्चन इज देयर. Why do you think people regarded Thanjavur as a great town? तंजावुर को उस समय के ज़माने में, जैसे आज हम मुंबई या कोलकाता के लिए बात करते हैं ना, इन द सेम वे दोज टाइम्स पीपल यूज टू टॉक अबाउट तंजावुर. ओ माई गॉड, देर इज़ अ प्लेस तंजावुर, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे देखना है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इस तरह से इट वॉज अ वेरी हैपनिंग टाउन एट दैट टाइम. ऐसा क्यों था? विल डिस्कस इन द ऑनलाइन सेशन. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर. एक तो हमने पढ़ लिया कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. Thanjavur was an administrative center. King was living there. The people who are making clothes are living there. Sculptors are living there. लेकिन there were temple towns also. कौन से ये टेम्पल टाउन्स थे और यहाँ पे क्या काम हो रहा था? Got it? ओके बेटा. सो देख लिया हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, हाउ तंजावुर वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. टेम्पल टाउन, टेम्पल टाउन क्या है? तंजावुर वॉज ऑल्सो अ टेम्पल टाउन. कैसे? बिकॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इज देयर. तंजावुर, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, आज से 1000 साल पहले, 1000 years फ्रॉम नाउ, तंजावुर वॉज अ वेरी बिग टाउन. इट वॉज नॉट अ विलेज. मतलब जो लोग तंजावुर में रहते थे, लाइक द पीपल हु आर स्टेइंग इन मुंबई ना, दे से ओ हो वी आर तो स्टेइंग इन द मल्टी सिटी. वो उनको हमेशा लगेगा अरे तुम तो बनारस में रहते हो, जो छोटा शहर है, हमारा मुंबई तो बहुत बड़ा है. इन द सेम वे द पीपल हु वर लिविंग इन तंजावुर, दे वेर कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन अ वेरी बिग टाउन. काफ़ी बड़ा शहर था. ओके, एंड अर्बनाइजेशन वॉज देयर, मतलब बहुत शहर था, एंड cities were developing. तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब पैसे कमाने का काम यहाँ अच्छे से होता था. रूलर्स, जो राजा महाराजा थे, दे वेर बिल्डिंग टेम्पल्स. टेम्पल्स वो इसलिए बनाते थे सो दैट द पीपल शुड अंडरस्टैंड कि वो कितने धार्मिक हैं. That, oh ho, they will say, oh my god, this king is so much attached to the Lord Shiva. Rajeshwara temple इन्होंने बनाया. People will feel happy because religious sentiments, I have already told you, religious sentiments are very emotional sentiments. लोगों का बहुत इमोशन जुड़ा होता है हर एक रिलीजन से. So when they will find any king doing a good work for some religion, they will feel very happy. I am talking about the common people. Got it? The rulers were building the temples. They were showing their dedication and devotion to the god. And temples में they also used to give endowed. Please understand, अभी endowed का मतलब नहीं पता होगा. Endowed means दान देना. क्या करना? दान देना. क्या दान देते थे? With grants of land and money to carry out elaborate rituals. So the पंडित comes or somebody from the temple will come and say कि महाराज वो दिवाली की पूजा है, उसके लिए पैसे चाहिए. So he will say whatever money you need, जितना पैसा चाहिए मंत्री जी इनको दे दीजिए. खूब बड़े में दिवाली होनी चाहिए. पीपल आउटसाइड, आस पास के राज्यों में, ठीक है, तंजावुर की दिवाली की जिक्र होनी चाहिए. pomp and show is also there ना, दिखावा भी तो करना है. They have to show it to the nearby people कि जैसी दिवाली हमारे यहाँ तंजावुर में मनाते हैं, ऐसी दिवाली तो कहीं नहीं मन सकती. Nobody can celebrate that kind of a Diwali. So rulers, they have built temples to पहला तो they have shown their devotion, and they used to give lot of money, land, कि वो कहेंगे आके कि अरे आजकल so many pilgrims are coming but they are not getting place to live. तो कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर बहुत बड़ा सा प्लीज मेक अ बिग होटल. उस समय का मेक अ रेस्ट हाउस, ठीक है. एंड ऑल दीज जो भी भक्त आ रहे हैं, पिलग्रिम्स का मतलब भक्त समझो, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज भक्त, ठीक है.
एंड फीड द पिलग्रिम्स, भक्त जो आ रहे हैं उनको 24 घंटा खाना होना चाहिए, नोबडी, कोई भी भूखा ना जाए, एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. तो लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू दी functions that were being carried on in the temple. Okay, जो भक्त आते थे दर्शन करने के लिए, all the people who were coming to do the darshan, they also used to give lot of money to the temple. वो भी खूब सारा दान करके जाते थे. तो temple had lot of income. All these temples till date, आज भी साउथ में there is one temple, बालाजी temple. वहाँ पे पीपल गो एंड दे डोनेट क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज़, बहुत पैसा है वहाँ पे. तो दैट इज़ देयर. नाउ जस्ट सी दिस स्टैचू, लुक एट दिस स्टैचू दैट हैज़ बीन मेड 1000 years बैक. 1000 साल पहले बना है माय डियर चिल्ड्रन. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट कालिया. वो लॉर्ड कृष्णा नहीं, एक बार यमुना नदी में गेंद गिर जाती है. आपने को नहीं ये स्टोरी पता नहीं सुना होगा. दिस इज़ अ फेमस स्टोरी इन द हिंदू कल्चर दैट वंस कृष्णा वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड यमुना में जब गेंद गिर जाती है तो देर वॉज अ बिग सरपेंट हु वॉज लिविंग इन दैट यमुना. बहुत बड़ा सा एक सांप था, वो यमुना के अंदर रहता था. एंड ही केम एंड ही सेड आई विल किल द पीपल हु हैव एंटर्ड एंड हु हैव डिस्टर्ब्ड मी. जिन लोगों ने भी मुझे परेशान किया है उनको मैं मार डालूंगा. एंड देन दिस सरपेंट ही कम्स ऑन द अबव वाटर, देन कृष्णा किल्स हिम. तो इस पिक्चर को, इस सीन का पूरा स्कल्पचर बना दिया है. सोचो हाउ टैलेंटेड द स्कल्प्टर्स वेयर. मूर्तियां जो बना रहे थे वो कितने टैलेंटेड थे. जस्ट सी द ब्रॉन्ज स्कल्पचर. दिस इज कृष्णा. देखो सांप के सर के ऊपर ये डांस कर रहे हैं. ओके, अभी प्लीज अंडरस्टैंड ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक. कैसे बनाते थे वो, हाउ दे यूज टू मेक सच बिग स्कल्पचर्स. इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां वो कैसे बनाते थे. तो ये समझो ब्रॉन्ज क्या है. इट इज़ एन एलॉय. एलॉय मीन्स 2-3 मेटल को मिक्स करके, 2-3 मिनरल्स को मिक्स करके 1 मिनरल इज मेड, दैट इज कॉल्ड एज एलॉय, जिसमें कॉपर होता है, टिन होता है. आई टोल्ड यू ना, एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स. तो कॉपर और टिन को मिला के 1 काइंड ऑफ मेटल इज मेड, दैट इज ब्रॉन्ज. दिस बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ टिन. ठीक है, बेल मेटल जो होता है उसमें टिन की मात्रा ज़्यादा होती है देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज. एंड दैट्स वाई इसमें आवाज़ आती है घंटी की. इट मेक्स अ बेल लाइक साउंड. टन टन. बेल बजाया है ना मंदिरों में, दोज हु आर हिंदू कल्चर में, दे माइट हैव. तो अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड कम्स. ऐसे आप किसी भी सरफेस पे, कोई भी किसी भी जगह पे यू टच इट, या उसको आप अगर आप मारेंगे या टच करेंगे तो उसमें अलग आवाज़ आएगी. लेकिन जो घंटी की आवाज़ होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है. ओके, नाउ चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज चैप्टर 2 में भी दिया हुआ, वेर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मोम का पहले बनाते थे. फर्स्ट दे यूज टू मेक अ मोम का स्कल्पचर, मोमबत्ती वो जो देखा वैक्स. तो उसके बाद दे यूज टू कवर इट विथ क्ले पहले, बिकॉज मेकिंग अ स्टैचू आउट ऑफ वैक्स इज वेरी इजी. मोम के ऊपर आप कुछ भी कभी भी देखना, उसके ऊपर वो एक लकड़ी उकड़ी लेके कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे तो यू कैन मेक इट. इसके बाद पूरा उसके ऊपर क्ले लगा देते थे, मट्टी, मोम की स्टैचू बना के. एंड देन उसको सूखने देते थे. सूख गया, इसके बाद इट वॉज हीटेड, पूरा गर्म कर देते थे उसको. तो एंड अ टाइनी होल वॉज मेड, उसके अंदर एक छोटा सा छेद करते थे ऑन द क्ले कवर, जो मट्टी का वो वैक्स के ऊपर जो मट्टी लगाई है. तो मॉल्टन वैक्स जब गर्म कर देते थे तो वो जो मॉल्टन वैक्स है वो बाहर आ जाता था थ्रू दिस होल, एंड मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल. वो जो छेद है वहां से वैक्स निकाल के उसमें मेटल डाल दिया, ब्रॉन्ज.
उसके बाद जब मेटल ठंडा हो गया, व्हेन द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, द क्ले कवर वॉज केयरफुली रिमूव्ड. मट्टी जो लगी हुई है हटा दिया. पहले वैक्स का स्टैचू बनाया, वैक्स बाहर आ गया, उसी में फिर मेटल का स्टैचू बन गया. एंड द क्ले कवर वॉज केयरली रिमूव्ड. क्ले वाला जो कवर था, जो मिट्टी का कवर था, उसको हटा देते थे. एंड इमेज जो मतलब मूर्ति जो बनाई है उसको क्लीन कर दिया. इट वॉज क्लीन्ड, इट वॉज पॉलिश्ड एंड द ब्रॉन्ज स्टैचू इज रेडी. अभी इसको बनाने में वॉट इज द एडवांटेज, इस तरह के स्टैचू को बनाने में? थिंक 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 थिंक. यस, please try to think and try to find out कि when this kind of lost wax technique is used. Got it? ये जो मोम का जो बना के पुतला, उसके अंदर में फिर मेटल डाल के ये जो टेक्निक यूज होता था, what was the benefit in that and what was the fun in that? Got it? So we will be discussing it in our classes. किसी भी क्लास में इन द ऑनलाइन सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग. एंड टेम्पल टाउन्स में व्हाट वेयर द अदर एक्टिविटीज दैट वेयर हैपनिंग. एक तो ये स्टैचूज बन रहे थे, हाउ दीज स्टैचूज वेयर मेड, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है. व्हाट वेयर द अदर एक्टिविटीज हैपनिंग, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.